Morning everyone, start from your attendance. Meanwhile, let's wait for 2 minutes more so that everyone can. Now, now everyone is here. We can start. And anyone who is left with attendance, you can submit it at last. Let's start with the chapter Equality in Indian Democracy. I hope everyone is on page number 213. And if anyone wants to take screenshots, uh, screenshots ले लेना, right? Plus, अगर कुछ miss out हो जाता है and you wanted to take a screenshot, refer to the recording. Okay, just go through the recording once for today. Shall we start now? Doubts as usual in the last. Before beginning of the chapter, first of all, we need to understand what is a democracy. Okay, everyone knows what is a democracy. Where represented easily, if I say, the representatives are elected by the people, right? In a democracy, representatives are elected by the people. We elect the people who will run the government, right? Right? Now, other than this, what are the essential features of democracy? By looking at what features you will say this country is democracy or not, other than electing the merely electing government, not democracy. Okay. There are certain other features as well which we need to talk about. Getting the point over here? So let's discuss those points. Democracy and its essential features. First of all, active participation by citizens. What we talked about was voting right? People are electing the government. This is the active participation. Now, acha bacha, there is a difference between participation and active participation. Active participation क्या होती है? For example, we need to elect. I can see some hands. Problem आ रही है? Swastika, Yashit, Aditya. For example, we want in the class, I said we want to elect the monitor of the class or the class. The strength of the class is 46. Okay, आपके class की strength is 46, right? And only the votes which are casted by these 46 people will make sure who becomes a monitor. There are two candidates. Okay, दो लोग participate कर रहे हैं for the elections of monitor in the class, and 46 people are voting, including these two. वो लोग तो वोट करेंगे ही करेंगे ना, चाहे जिसको अपने आप को ही करेंगे, बट वोट तो करेंगे ना. So there are total 46 voting people, eligible voters. ठीक है, मैं इनको बोलूंगी eligible voters. इसमें से 30 ने बोल दिया मैम हमको दोनों ही नहीं पसंद और वोट कर रहे हैं खाली 16. Is this active participation? 30 said we will not vote. और इवन 20 ने भी बोल दिया तो वी नॉट. 26 बहुत अच्छा नंबर है वोटिंग के लिए, right? Active participation means when your population actively means more than 65% of them vote in the elections. ये active participation होती है. इस सारे सब सिटीजन्स को अपने राइट्स का पता है, सब सिटीजन्स को अपनी इंपॉर्टेंस का पता है कि हमारा वोट कितना इंपॉर्टेंट है. अगर यही पॉपुलेशन जो 39%, 40% वोट कर रही है, इतने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, वो सिर्फ 39% और 40% वोट कर रहे हैं, तो इज दिस एक्टिव पार्टिसिपेशन? डू दे हैव राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट? अगर मैं वोट ही नहीं कर रही, आई एम नॉट वोटिंग, डू आई हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और टू अप्रिशिएट द गवर्नमेंट?
सही है ना? You are only eligible to criticize the government. You are only able to appreciate a government only when you are voting, you are exercising your right to vote. अगर आप participate कर रहे हो इलेक्शंस में वोट करके, then only you are eligible to criticize your government, you are eligible to appreciate your government. आपने तो कोई स्टैंड ही चूज नहीं किया ना, आपने तो कोई स्टैंड लिया ही नहीं, राइट? इन दो कैंडिडेट से आपने तो इन 30 या 20 स्टूडेंट्स ने कह दिया तो नहीं करेंगे, हमें करना ही नहीं है, या इन्होंने बंक कर दिया पीरियड, और मे बी दिस 20 सेड हम इन दोनों को ही पसंद नहीं करते मैम। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक और ऑप्शन दे दूंगी तुम्हें, बट एटलीस्ट यू वोट। ओके, सो दिस इज नोन एज एक्टिव पार्टिसिपेशन, when your population actively participates. Okay? Then next comes freedom to express one's opinion. Opinion is viewpoint. Okay? मुझे गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी लगी, आई एम फ्री टू एक्सप्रेस दैट। Okay? I am free to express that. I can give suggestions to the government. हाँ, गवर्नमेंट मेरा सजेशन एक्सेप्ट करे ना करे, बट आई हैव दैट फ्रीडम टू क्रिटिसाइज, to appreciate and to give suggestions to the government. When you get this freedom in a particular government or in a particular country, that is a democracy. आपको ये राइट सिर्फ डेमोक्रेसी में मिलेगा। एवरीवन नोज चाइना में आपको पता है आपको फ्रीडम नहीं है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की, सबको पता है, एवरीवन नोज दैट यू कैन नॉट राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। रिसेंटली बहुत सारी न्यूज में आया कि न्यूज ने भी कोविड पे बोलने की कोशिश की है कि वो चाइना की वुहान लैब से आया या कहाँ से आया, वट एवर, if they are said something against the Chinese government, they have been executed, they have been put in the jail, right? So is this democracy? Not a democracy, right? It's not democracy. And in India, you can criticize the government, right? You can criticize the government. आपको कोई पॉलिसी पसंद नहीं आई, or you think the government is going in the wrong direction, or government is not working properly, you can criticize him, right? Nobody is putting you in the jail. Then the other point comes resolving conflicts through consensus and consultation. Conflicts means when you have disagreement. And disagreements usually result into fights. अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखा होगा आपने, आप अगर किसी बात पे डिसएग्री करते हो तो आपके बीच में कई बार कंफ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है ना? हो जाती है, घर में भी हो जाती होगी, राइट? इट यूज्ड टू हैपन एट योर होम एज वेल। किसी बात पे एग्री नहीं किया तो डिसएग्रीमेंट है, या ओपिनियन मैच नहीं करता है तो यू विल हैव, इट विल रिजल्ट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो जाएगी, या आप बोलना बंद कर दोगे अपने ब्रदर सिस्टर के साथ या मम्मी पापा के साथ, ऐसा ही था ना? तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं डेमोक्रेसी में? इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं कि अच्छा दो दो ग्रुप्स हैं या दो पार्टीज हैं, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट की वजह से कंफ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई है, उसका रिजॉल्व होता है इशू कंसेंसस और कंसल्टेशन से। कंसल्टेशन इज डिस्कशन, हमने कंसल्ट किया, हमने डिस्कस किया, ठीक है? कंसेंसस मीन्स व्हेन वी रीच अ कंक्लूजन with the help of discussions. क्या कैसा हुआ अब ऐसा समझो कैसे होता है। just imagine you are in the class setup, okay? It's my period, I have to bell rang and it was supposed to be my period and I got 5 minutes late to the class. Meanwhile
A fight broke out between two people and the class was divided into two groups. The class got divided into two groups. I came to the class and everyone is howling, shouting, everything is going on. Right. I told everyone to calm down and be seated. Right. I will call up two people जिनके बीच में दो ये लड़ाई actually हुई. ठीक है. Both of them will have their own version of story. दोनों का अपना वर्जन होगा ना स्टोरी का, कि दोनों सेम बात बोलेंगे. एक बोलेगा उसकी गलती है, द अदर विल से नहीं सामने वाले की गलती है. Right? Everyone, both of them will have a different aspect to the story. Right? So what would happen? I will say अच्छा ठीक है, दो ग्रुप्स डिवाइड हो गए, मैं और ग्रुप्स में पूछूंगी, फिर डिस्कशन होनी स्टार्ट होगी. नहीं ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था मैम, ऐसे हो गया मैम, वैसे हो गया. ठीक है. फाइनली थ्रू डिस्कशन आई विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली क्या हुआ. डिस्कस हुआ ही अच्छे से नहीं, उसने वैसे किया, उसने वैसे किया, फिर मैंने ये किया, फिर तूने वो किया. राइट. अ होल डिस्कशन टुक प्लेस. राइट. एंड आई टोल्ड यू ऑल कि अब जो भी हम कंक्लूजन पे आएंगे, कंसेंस जो हम कंक्लूजन पे आएंगे वो हम डिस्कशन करके आएंगे. ठीक है. हमने डिसाइड किया, हमने डिस्कस कर ली, हमने डिसाइड किया. ठीक है. मैंने बोला दोनों पार्टीज एक दूसरे से सॉरी बोलेंगे. ठीक है. दोनों पार्टीज, बोथ द पार्टीज. आप लोगों का ठीक है मैम, ये डिसीजन अच्छा है. तो हम डिस्कशन करके, कंसल्टेशन करके एक कंसेंसस पे आए. बात समझ में आई? ऐसे ही होता है. ऐसे ही होता है कंट्रीज में भी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज. इसका बेस्ट एग्जांपल हम फ्रॉम द रीसेंट टाइम्स हम देख सकते हैं फार्म लॉज में. अगर आप फार्म लॉज को फॉलो कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो सीइंग द न्यूज, द गवर्नमेंट वाज मीटिंग, द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स वर मीटिंग with the farmers on a regular basis. They were holding meetings, right, so that they can resolve this conflict through consultation and concession. है ना. मीटिंग्स हो रही थी बहुत सारी मिनिस्टर्स के साथ, फार्म लीडर्स की. अब न्यूज फॉलो कर रहे थे, कौन कौन न्यूज फॉलो कर रहा था? फार्म लॉज वाली. अच्छा, फार्म लॉज अगर समझने हैं किसी दिन, अगर ये डाउट है कि फार्म लॉज समझने हैं, सो वी विल हैव अ सेपरेट क्लास फॉर इट. समझा दूंगी तुम लोगों को. ठीक है. स्वास्थ्य का विल कम टू यू लेटर. Resolving conflicts through consensus and consultation is clear, everyone? Thumbs up, thumbs down. Good. Next is equality and justice. Wherever the government or the even constitution tries to promote equality and justice amongst its people, that is known as democracy. ये डेमोक्रेसी का एसेंशियल फीचर है, जब भी इक्वालिटी और जस्टिस प्रमोट की जाती है. एवरीवन इज नॉट इक्वल. और कोई इक्वल नहीं है ना इकोनॉमिकली, लाइक द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव, सोशली भी नहीं है ना. एंड डू एवरीवन can a poor people afford lawyers and advocates? अफोर्ड नहीं कर सकते ना, है ना. तो गवर्नमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हेल्प करता है उनको जस्टिस प्रोवाइड करने में, इसका प्रोविजन भी है. पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड to hire lawyers and advocates so that they can fight their case. हो सकता है ना किसी के केस, फ्रॉड केस हो जाए या किसी भी तरह का केस हो जाए, कोई पुअर पीपल, कोई पुअर मैन इन्वॉल्व हो जाए, है ना. कोई डेली वेज वर्कर है, a daily wage worker who hardly earns 2 meals a day. तो 2 meals a day के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है जिसको, क्या वो सच में लॉयर्स और एडवोकेट्स की इतनी हाई फीस दे पाएगा? नॉट पॉसिबल. तो उनके लिए वो कैसे जस्टिस प्रोवाइड हो, ठीक है, और कैसे इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो. ऑल्सो मेक डेमोक्रेसी, दिस इज ऑल्सो डेमोक्रेसी इज वन एसेंशियल थिंग. ठीक है. मूविंग अहेड,
नाउ टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। तो पहली बात तो बुक में ना सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी का सिर्फ नाम है, इट इज नॉट डिफाइंड, मतलब अच्छे से डिफाइंड और एक्सप्लेन नहीं है, बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन यू सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन योर माइंड। ठीक है, बट एग्जाम परस्पेक्टिव से पता होना चाहिए आपको तीनों कौन सी इक्वालिटी होती है। ठीक है, ओनली नेमिंग देम इज इम्पोर्टेंट एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी हैज बीन एक्सप्लेन्ड वेरी थॉरली इन द चैप्टर। अब जितने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो किसके लिए ट्राई करती हैं, दैट दे ट्राई टू अचीव पॉलिटिकल इक्वालिटी, social equality and economic equality. These three types of equality all democratic governments want to achieve, right? Starting with political equality. Okay, political equality has been extensively explained in your book. इसके दो एस्पेक्ट है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी के बच्चा दो एस्पेक्ट हैं, अच्छे से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज राइट टू वोट। आई एम टॉकिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। राइट टू वोट, लास्ट ईयर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ के आए हम, या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? थम्स अप, थम्स डाउन। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक ही बात है? यस। यूएएफ और यूएएस, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, all Indian citizens above 18 years of age are eligible to vote. यही है ना, है ना? तो only ना, all Indian citizens above 18 years of age are eligible to vote, right? Now there's one more thing in class 7 we need to add. There can be no discrimination on the basis of caste, class, religion or gender. आई एम अ फीमेल का मतलब ये नहीं कि मुझे राइट टू वोट नहीं मिलेगा, नहीं, मुझे मिलेगा, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। यू बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, फॉर एग्जाम्पल एनीवन बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट, इसका मतलब ये नहीं इसको राइट टू वोट नहीं मिलेगा। नो, देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजन के बेसिस पे भी नहीं होगी, आप माइनॉरिटी हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आपको नहीं मिलेगा, नहीं। everyone will get the right to vote. Only criteria is you have to 18 years of age and Indian citizen. आप 18 या 18 years of age हो, above हो, you are eligible to vote. You will get your voter ID card, right? You belong to a middle class, lower class, higher class, no problem. There will be no discrimination on this basis. Right to vote के लिए कोई discrimination acceptable ही नहीं है, acceptable भी नहीं है, allowed भी नहीं है, and nobody can do that. ये नहीं आप वोटर आईडी कार्ड बनवाने गए एंड द ऑफिसर सेज नो यू बिलोंग टू दिस क्लास, यू बिलोंग टू दिस रिलीजन। नो, इफ ही डज यू कैन गो टू द कोर्ट। मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी है। गेटिंग द पॉइंट? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समझ में आई? एलिजिबिलिटी इज इंडियन सिटीजन and you have to be 18 years of
age, minimum 18 years of age and above, right? Third, no one can discriminate. No one can say, no, you cannot vote because you belong to this caste, you belong to this class, or this religion, or you are female or male. आप वोट नहीं कर सकते, नो. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी बेसिस पे आपके साथ. Getting the point? Now, this was universal adult franchise, or the eligibility basically, or universal adult suffrage. The aspect two is value of vote. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वोट करते हैं, देखा होगा. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वोट करने के न्यूज में आता है जिस दिन इलेक्शन होते हैं, है ना. पीएम मोदी वोट करने गए, मिनिस्टर, ये मिनिस्टर वोट करके आए, वो मिनिस्टर वोट करके आए, देखते हो न्यूज में. अरविंद केजरीवाल ने अपना वोट डाला, देखते हो. तो प्रेसिडेंट वोट करता है इलेक्शंस में, पीएम करता है, मिनिस्टर्स करते हैं. स्मृति मैम ऑल्सो वोट्स. ये स्मृति मैम भी वोट डालने जाती है. टू द वैल्यू ऑफ स्मृति मैम्स वोट, इफ स्मृति मैम्स वैल्यू ऑफ वोट इज 1, मेरा 1 वोट है, 1 ही गिना जाएगा. क्या प्रेसिडेंट, पीएम और मिनिस्टर्स का भी यही वैल्यू है? क्या उनका वोट भी 1 ही गिना जाएगा, 1 ही काउंट होगा? यस. If their vote is being counted as 2, my vote will also be counted as 2. Value of vote equal 1 vote 1 value. हमारे में यही चलता है, 1 vote 1 value, irrespective whosoever is voting. प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो. स्मृति मैम वोट करेंगी, कोई और वोट करेगा, उनकी भी सेम वैल्यू है. आपके पेरेंट्स करेंगे या कोई भी करेगा, सेम वैल्यू है. वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा. ये नहीं है वो प्रेसिडेंट है उनके वोट हम 4 गिनेंगे, वोट एक है लेकिन हम काउंट 4 कर रहे हैं. नो, दिस इज नॉट डन, एंड दिस इज नॉट द लॉ इवन इन इंडिया. We work on the principle of, we count the votes on the principle of 1 vote 1 value, whosoever is voting. If the population of, say, if we are the population of 130 crore, and per se 80 crore is the voting population, ठीक है. 80 करोड़ में से बाकी 50 करोड़ बच्चे हैं, ठीक है. 80 करोड़ आपकी वोटिंग पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन वोटिंग आपकी 80 करोड़ है. इसमें से अगर 50 करोड़ में वोटिंग कर वोट्स डलते हैं तो 50 करोड़ वोट्स आए आपके पास, बिकॉज 1 वोट हैज 1 वैल्यू. सबकी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, एंड ऑल्सो देयर इज अ लॉ ऑफ सीक्रेसी. इंडिया में मेंटेन होता है कि आपका वोट आपने किसको दिया ये किसी को नहीं बताया जाएगा. लॉ ऑफ सीक्रेसी. कौन कौन पेरेंट्स के साथ जाता है जब वो वोट करने जाते हैं? हम लोग नहीं जाते. हमको बचपन में बहुत शौक होता था, वो इंक लगवा के आते थे हम भी. Yeah, I used to go with my parents and my grandparents so that I can get that ink when I was a kid. Yeah, so if anyone of you have accompanied your parents, तो एक बॉक्स में होते हैं वो, बॉक्स में बैलेट बॉक्स जो ईवीएम होती है वो बैलेट बॉक्स में होती है. दिस इज टू मेंटेन द लॉ ऑफ सीक्रेसी. ठीक है. आपने किसको वोट दिए बता नहीं सकते, ये लॉ है. गेटिंग द पॉइंट? ठीक है. पॉलिटिकल इक्वालिटी सारी अच्छे से समझ में आई? क्लियर विथ पॉलिटिकल इक्वालिटी? गुड. Okay. So Asif, I will come to you later on for the doubt. I'm clearing the picture, bacha. So we have not taken the screenshot. Screenshot ले लो if anyone wants to take.
So I'm clearing the drawings. Moving ahead, next is social equality. Social equality means when the government provides healthcare, education, social security to the underprivileged. हम तो privileged है ना, we can afford hospitals, we can afford education, we can afford other social benefits, है ना, हमारे पास insurance है, हमारे पास हमारी health insurance है, we have our own life insurance, हमारी तो कार और स्कूटर की भी इंश्योरेंस होगी, है ना? किसकी कार और स्कूटर की इंश्योरेंस है? आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी, लाइफ इंश्योरेंस भी होगी। क्या सब इतने प्रिविलेज हैं इंडिया में that they get health facilities, they are able to get education, they have insurance with for them? नहीं है ना? सोशल इक्वालिटी का यही मीनिंग होता है दैट गवर्नमेंट ट्राइज टू मेक द अंडर प्रिविलेज सेक्शन, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनको सोशल सिक्योरिटी दे सके। सोशल सिक्योरिटी कैसे आती है? थ्रू इंश्योरेंस, थ्रू गिविंग देम इंश्योरेंस पॉलिसीज, राइट, थ्रू गिविंग देम हेल्थ बेनिफिट्स, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, ठीक है? इन सब मेजर से सोशल इक्वालिटी आती है। जब जनधन अकाउंट्स खुले थे ना, जनधन मीन्स मास स्केल पे जब अकाउंट्स खोले थे गवर्नमेंट ने, राइट, तो इट ओनली स्टार्टेड विद ₹1। तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने एक रुपया जमा करवाया था अपने सेविंग्स अकाउंट। और अभी आप प्राइवेट बैंक में या किसी और बैंक में भी अकाउंट खुलवाने जाओगे ना आप, तो इट विल आस्क यू फॉर मिनिमम ₹4,000 और ₹3,000 टू कीप एज फर्स्ट सेविंग्स, ठीक है? बट देयर आर सो मेनी अंडर प्रिविलेज पीपल जिनको सोशल सिक्योरिटी में लाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके अकाउंट्स खोले गए विद ₹1, ठीक है? एंड इन दैट ₹1 they also got insurance, government insurance, health insurance। हमारे लिए ज्यादा अमाउंट की नहीं थी, 5,000 10,000 की इंश्योरेंस की थी। हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इंश्योरेंस का, बट उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत सारे सेक्शन के लिए। तो a social security was awarded to them. Education is free, health is free for the underprivileged section. So the government is trying to develop social equality in the society. Getting the points? अब तो नहीं है? Now the next is economic equality. Economic, first of all, the word economic simply means anything which is related to money. Okay? Economic means anything which is related to money. Money से related. अब इकोनॉमिक इक्वालिटी की नीड क्यों है? इकोनॉमिक इक्वालिटी की नीड इसलिए हुई कि हमने देखा, गवर्नमेंट सॉ दैट, चलो इसको छोड़ो, एक एग्जांपल बताओ, एक एग्जांपल दे रही हूँ। 100 ब्रिक्स को लिफ्ट करके और ट्रांसपोर्ट करने का, कंस्ट्रक्शन साइट पे उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम है, ठीक है? मैन भी कर रही है, women भी कर रही है, राइट? मैन इज गेटिंग ₹100 and women is getting ₹80। डिस्पैरिटी है? सेम वर्क है, सेम वर्क है, द वर्क इज सेम, बट आर दे गेटिंग इक्वल मनी? आर दे गेटिंग इक्वल पे? इक्वल सैलरी नहीं मिल रही ना, ठीक है? अच्छा, ये एक लेवल पे थी कि मेन एंड वुमेन में डिस्पैरिटी है, सेम वर्क को लेके दे आर नॉट बीइंग पेड इक्वल। सेकेंड आइज ऑफिसेस में बात करते हैं, पब्लिक ऑफिसेस में। पहले प्राइवेट ऑफिसेस इतने नहीं होते थे, ठीक है? पब्लिक ऑफिसेस ज्यादा होते थे, दैट इज गवर्नमेंट के ऑफिसेस ज्यादा होते थे। अपर कास्ट मैनेजर पब्लिक ऑफिसेस में तो नहीं, ऐसे पब्लिक में नहीं, प्राइवेट में ही होता था ये चाहिए। जब ये छोटी मोटी प्राइवेट कंपनीज थी, बहुत ज्यादा प्राइवेट कंपनीज नहीं थी, अपर कास्ट
मैनेजर, पहली बात तो लोअर कास्ट को अलाउड ही नहीं होता था कि इतनी प्रमोशन हो उनकी, ठीक है, बट कोई अपने इतने स्किल वगैरह से कोई मैनेजर बन भी जाता था. अपर कास्ट यूज टू गेट मोर सैलरी देन द लोअर कास्ट. ठीक है, काम सेम है. एक बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल देती हूँ जो आप लोगों ने आज के टाइम में देखा होगा. आजकल एक बॉलीवुड में भी चल रहा है दैट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. अक्षय कुमार गेट्स 10 to 15 crores फॉर कैरिंग अ फिल्म, और वही फिल्म दीपिका करती है विद वुमेन सेंट्रिक मूवी. अगर दीपिका या कोई बहुत बड़ी फीमेल एक्टर करती है, शी ओनली गेट्स 5 to 6 crores. इवन द मूवी गेट्स हिट. फीमेल सेंट्रिक मूवीज में फीमेल एक्टर्स को उतने पैसे नहीं मिलते जितने मेल सेंट्रिक मूवीज में मेल्स को मिलते हैं, मेल एक्टर्स को. पीछे आप लोगों ने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा, दीपिका, देवर ऑल, न्यूज में भी था, दे आर ऑल सेइंग दैट वी शुड गेट इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे. ये बॉलीवुड में भी बहुत देखा जा रहा है, राइट. सो इकोनॉमिक इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू वर्क. ये इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है जब सबको इक्वल पे मिले इक्वल वर्क के लिए. इफ टू पीपल वर्किंग सेम, दे शुड गेट इक्वल irrespective what. पॉइंट समझ में आया बच्चों? इनइक्वालिटीज के बारे में कल डिस्कस करेंगे. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. tomorrow I'll be telling you the homework for GK, right, because we are running out of time now. And let's meet up tomorrow. Okay, take care everyone, see you. I hope attendance has been sent by everyone. Great, see you tomorrow. Bye everyone, take care.